students are roaming, I advise them to please settle down at the earliest. Shabash, take your seat. Let's utilize the time in the best possible way. Well, 8th B is well settled. 8th D, oh, very obedient son. Almost all settled. 8th E, well settled. Only one section is not yet settled. Only 8th G. 8th G students are taking too much time. Bete. Only because of you, school is getting late. Lecture is deferring. 8th B students, bete, why are you roaming so much? I request the teacher to please settle the students at the earliest, particularly in 8th B and 8th G. Well. Students surely take some time. After all, they are sweet children. Okay, we take. Everybody, you know the heading today is what? Light. Hmm? Listen, where, bete. By the time students settle down, let me ask you a simple question. Suppose this is your room. This is one of the room. Okay? And it is the entry door of the room. Right? In between the room, there is a wooden partition. There is a wooden partition. I repeat once again, there is a room in which up to 75% there is a wooden partition. This is the entry door. And on this particular chair, the mother of a small kid, is sitting. Okay? And the kid enters into the room. छोटा बच्चा room में enter कर. Right? Now my question is, as the child enters, he observes my mother is sitting nowhere. Fine. But the mother is actually behind the wooden partition. The child is crying, Mama, Mama. How this mother will come to know that my child has entered in the classroom? By his shadow. By his shadow? How but a child has just entered into this, shadow will not go to that side because in between there is wooden partition. Sound. Okay. Some student says, sir, she will come to know by listening the crying of the children. Okay. Let's remove the sport of crying. The kid enters into the room silently now. Okay? Lights get stopped. Light gets stopped. Light gets stopped. One of the good student has assessed, sir, as you know, the light is entering from the door. When the child will enter, there will be some difference of the intensity falling on the floor of the room. From there, the mother will assess that someone has entered. Someone. But the teacher is saying how the mother will come to know that her kid has entered, not someone. Her kid has entered. Now answer. सर किड है वो लाइट का पाथ कम ब्लॉक करेगा. किड जो है लाइट का पाथ कम एब्जॉर्ब करेगा. Okay. But don't you think for some time that if some animal whose body size almost as that of kid, like a well-grown dog, enters into the door, almost same kind of intensity of the light will be reduced. So you cannot confirmly say
that mother will come to know only kid has entered, not some animal. Shabash replied, I am stressing your brain and not guessing the correct answer. So far, no student has answered very correctly. सर यहाँ पे कोई मिरर है? Very good, very good. That's the point where I was thinking that some students' thought process should go to that direction. This child in the eighth class, eighth E section, is in the right orientation of thinking. She said, "Sir, as this is the room, there must be some mirror. But remember, anywhere if I fit the mirror here, of course, she will know the entry of the kid by seeing the reflection of the kid in the mirror. It is very much sure. But question is, where should she put the mirror? Where should she put the mirror? If she will put the mirror here, suppose. So after reflection, light will go to Then the at her opposite side in the corner like parachute. The top right corner. Okay, let me mention the points. A, B, C, D, E, F. Can you tell me particularly at what point the plane mirror should be installed? D. B point. D. Then D. Sorry, but then you are wrong. Suppose if I paste the mirror here, okay, D, okay, yellow. D point where I have pasted the mirror, and the kid has entered. Kid is here. Okay, that reflection, the ray of light from the kid body will go to this side and will reach hit here. Suppose this point, the topmost point is K point. So K point will come lie somewhere here. Okay, but the mother is sitting here. So light is going to that side. Mother is sitting here. How she will come to know? Any further answer? शाबाश शाबाश सोचो, you are very close to the correct answer. थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ी सी. Pardon? E point. E point पे तो light will go to this side and finally go to this side. And later on it will strike against the wooden partition. Look. Let's see. Okay, let me tell first of all say E. Light goes to this side, then goes to D point. D point is very near here. Then it will strike the what? Wooden partition. Which one? Point पे mirror है. K point पे. Yes. That is what I was expecting. कौन सी क्लास में आंसर दिया ये? Sir, 8th E. 8th E. Again, the 8th E gives the correct answer. She said, sir, why not to put another mirror here? Very good, very good. So now the child is actually saying me, sir, you should put one mirror at the D position, plane mirror, and then another mirror at the K position. Now you know, sir, what will happen? The ray of light from the body of the kid will fall to the D point. It will get reflected, will go to this side, K point, and from there it will enter the eyes of the mothers of the kid. Okay, so this concept is known as. Can you tell me what heading I can give the to this concept? Reflection. Pardon? Reflection. So this concept is concept of multiple reflection. So very good बेटे. 8th E में एक बच्चा है जिसने मेरे को खुश कर दिया, अदरवाइज कोई जवाब नहीं दे सका. इस गुड़िया का नाम क्या है जिसने दोनों बार सही आंसर दिया? गुरलीन. गुरलीन भाई, मैं आपके लिए पीरियड रोक के बीच में क्लैपिंग.
बहुत अच्छे। अब नाउ द क्यूरियोसिटी राइजेस कि सर ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन की और क्या क्या टाइप्स हो सकती है, क्या क्या इसमें यूटिलिटीज हो सकती है, उन सभी को आज हम समझते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन के कुछ बेसिक्स पढ़ने के बाद तो रेडी हो जाओ, बी रेडी विद द पेन एंड कॉपी, ताकि मैं आपको रिफ्लेक्शन के कुछ अच्छे अच्छे बेसिक्स बता के फिर एप्लीकेशन करते हुए, फिर एक्टिविटीज करते हुए मिरर के साथ मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें समझाता हूँ। रेडी? ओके, सो हियर वी गो। Look here. First of all, teacher is taking a plane mirror which is placed horizontally. Fine. बहुत सी बातें बताऊंगा, ध्यान रखना। लेट्स कॉल इट एम। क्योंकि आपने रिफ्लेक्शन जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछता हुआ चलता हूँ, और फिर देखते हैं क्या कोई सेक्शन है जो 8th ई को बैलेंस कर पाता है, बराबर आ पाता है। याद रहे, एक दो क्वेश्चनों के आंसर 8th ई ने भी बैलेंस बराबर करने की कोशिश करो, बल्कि बीट करने की कोशिश करो 8th ई को। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन, इफ दिस इज a plane mirror, upper face is shining, naturally there is a polished spray polish on the lower side. This is actually a transparent sheet which is sprayed on the lower side, spray paint on lower side. Can somebody tell me which metal is used to spray the transparent layer? Yes. हाँ जी, सॉरी बेटे, आवाज अच्छे से सुनी नहीं। 8th बी का एक बच्चा कंपटीशन करने की कोशिश। नाइक्रोम? नो, नाइक्रोम। गोल्ड सिल्वर। वाह, 8th ई का एक बच्चा कोई बॉय है इस बार, और उसने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड भाई, 8th ई का तो कमाल हो गया। एक बार आंसर, दो बार आंसर, तीन बार आंसर, वाह। सर डी सेक्शन दिया है जी, इस बच्चे ने मेरे को बताया सर दिस पॉलिश कैन बी ऑफ सम मेटल, और इस बच्चे ने मेटल का नाम सेक्शन से जवाब है। बी से भी आया था। दिस मेटल, दिस मेटल कैन बी ए यू। द डी दिल्ली से तो आया नहीं जवाब, ई से आया बेटे। मैं डी से दिया था। E, चलो बेटे, लो डी भी लिख लिया। आगे से फिर हम कंपटीशन ही कर दिए। अच्छा, ये पॉइंट सुन लो, इट कैन बी ए यू, इट कैन बी ए जी, इट देखो, इट कैन बी गोल्ड। देखो, मैं डायरेक्टली गोल्ड भी लिख सकता था, पर ए यू करके लिखा है क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को गोल्ड मेटल का सिंबल भी पता लग जाए। इट कैन बी सिल्वर, लेकिन दोनों कॉस्टली मेटल्स हैं। इट आजकल हम एल्यूमिनियम से भी काम चला लेते हैं, लेकिन अच्छा मिरर बनाना हो और पैसे भी बचाने हो तो क्रोमियम, क्रोमियम की कर देते हैं पॉलिश, और भी पैसे बचाने हो तो निकल की कर देते हैं। और आज की डेट में प्रैक्टिकली ये दो मेटल सबसे ज्यादा यूज होते हैं। लेकिन अगर कोई मिरर अच्छे कॉस्टली बैलून सैलून में फिट करा जाता है, अच्छे कॉस्टली सैलून में, ब्यूटी सैलून, हेयर ड्रेसर, तो वो गोल्ड पॉलिश ले लेते हैं या फिर सिल्वर पॉलिश ले। ओके, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं कौन बच्चा जीतता है, विच सेक्शन विन्स ओवर। आपने कभी मिरर को बैक साइड पर करके देखा हो? मेरे तो इसमें फ्रेम लगा हुआ है, वरना मैं आपको दिखाता। इसमें भी फ्रेम लगा हुआ है, छोटा मिरर का। ओके, तो आपने क्या देखा होगा, सिल्वर पॉलिश के बाद भी बैक साइड पर एक ऑरेंज कलर का पेंट किया होता है। लेड कंपाउंड। किसने बताया? ये कौन सा चीज होती है और क्यों लगाया जाता है? गुरलीन 8th ई में फिर से छा गई, वाह वाह। 8th ई में एक बार फिर से करेक्ट आंसर बाय गुरलीन, एंड शी सेड। कोई और बचा? नहीं तो मैं डिस्क्लोज कर दूंगा। एनीबॉडी?
ओहो नहीं बता रहे। ये देखो Amount. कभी कभी ऑरेंज कलर का होता है, कभी कभी और कलर का भी होता है, देखो ऐसा भी होता है। ये देखो मिरर है, ये बैक पहले स्प्रे पॉलिश करा हुआ है निकल का, उसके ऊपर एक और पॉलिश करा हुआ। कोई और बच्चा बता सकता है? एनी अदर सेक्शन? एक ही बच्चा गुरलीन है। ओके सो Treated to fix the polish. कौन है? लेड कंपाउंड। लेड कंपाउंड होता है बेटे, इसी कंपाउंड से वो जो लेडीज अपने ऐसे मांग में सिंदूर भरती है ना, वो भी बनता है इससे। ओके अब ये जो कंपाउंड है ये क्यों लगाया जाता है? इसलिए इसलिए कि जो To fix the paint. मेटल की पॉलिश कर रखी है उसको दो स्पॉट मिले। पहला स्पॉट कि वो लंबे टाइम तक चिपके रहे, उसकी लाइफ बढ़ जाए। लाइफ यानी मिरर को ठोकर लगे कुछ लगे तो वो पेंट तो उतर जाए पीछे से, चाहे लेड कंपाउंड, पर मेटल की पॉलिश कायम रहे। दूसरा, जो मेटल की पॉलिश होती है उसका एनवायरमेंटल फैक्टर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हट जाए, टूट जाए, ताकि वो मेटल इरोड ना हो सके, धीरे धीरे खुर के नीचे ना गिर सके। यानी जो ये स्प्रे पॉलिश है, इस मेटल की स्प्रे पॉलिश, स्प्रेड मेटल पॉलिश, उसकी लाइफ को एनहेंस करने के लिए और उसकी कोरोजन को कम करने के लिए, ये दो चीजों के लिए यूज किए जाते। वेरी गुड बेटे, आगे चलते हैं, शाबाश। इस चीज को हम, ये तो कहीं और ही चले गए, हम फिर से चलते हैं। ये हो गया हमारा मिरर, ओके, और ये हो गया उसका शाइनिंग सरफेस। अब सुनो ध्यान से, देयर इज ए सोर्स ऑफ लाइट, राइट? ध्यान से सुना, बीच में अचानक से क्वेश्चन आ जाए, इस बार गुरलीन को जीतने नहीं देना, 8th ई को जीतने नहीं देना, बी रेडी। शाबाश, यहां से रे ऑफ लाइट आई। इस रे ऑफ लाइट को श्योरली सारे बच्चे जानते हैं, इंसिडेंट रे बोलेंगे। कैन समबडी टेल मी व्हाट विल बी द टर्मिनोलॉजी ऑफ पॉइंट पी? जहां पर ये लाइट गिरी, पॉइंट पी इज नोन एज टेक्निकली, हरी अप हरी अप। A point of Very good. B section wins. B section has defeated the other sections now. B section says, sir, point P is point of incidence. Point of incidence. Sir, answer तो इस section में दिया। नो नो, देखो बाद वाला आंसर नहीं मैं देखता, सबसे पहले कौन सा है। मेरे पास ये असिस्टेंट बैठे हैं यादव जी, एकदम से मेरे को बता देते हैं पहले किसने दिया। आपने दिया होगा बाद में, ठीक, मैं सबसे पहले वाला सेक्शन देखता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब बेटे इंसिडेंट रे व्हेन फॉल्स हियर, और यहां पर वी आर ड्राइंग अ पर्टिकुलर नॉर्मल, वी कॉल इट नॉर्मल एज वेल एज परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। व्हाई? बिकॉज पिंक लाइन इज मेकिंग द 90-degree एंगल विद द मिरर सरफेस। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, can somebody tell me what is the name of that angle which is mentioned by green color? angle of incidence. Stress. Pardon? No, no correct answer. Angle of incidence. Sorry, 8th G का answer गलत है। Long lens. Very good. 8th G wins. 8th G कमाल हो गया। 8th G ने सही जवाब दिया। She says it is the angle of glance, also called as glancing angle. Okay. बेटे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो वो होता है जिसको टीचर व्हाइट कलर से मेंशन कर रहे हैं। दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, वन मोर थिंग आई आस्क यू, चलो आई फर्दर प्रोजेक्ट दैट had there been no mirror, this projected incident ray of light would have gone to this direction, same straight line direction. Had there been no mirror,
the ray of light would have maintained its incidence direction, would have gone to same straight line. Question: what is the name of that property because of ray of light travels in the same straight line? What is the name of that property? Travels in a straight line. No, particular word चाहिए. Particular word. Light travels in the same ray of light travels in the same straight line. The name of this property is. पढ़ा हुआ है junior class में. Linear propagation of light. बात है, क्या बात है. 8th G wins. 8th G wins. भाई 8th G तो कंपटीशन कर देगी 8th E का, मेरे को तो लगता है. So this property is known as rectilinear propagation. Okay, very nice. Okay, Betty. Let's move further. Now you all know incident ray will go to this side after reflection. Reflected ray. No, but if that question will be considered which I ask. ऐसे तो सारे बता देंगे reflected. जो मैं पूछूंगा उसी में asli तो. This is the reflected ray. Okay, RR stands for IR is incident ray. RR is reflected ray. Okay. और something मैं अपने आप बताने लगा हूँ. This particular brown color is yellow triple color is known as angle of reflection. Now my next question. अब अगर किसी में हिम्मत है तो जवाब देना बेटा. I am particularly mentioning an angle in the brown color. You have to immediately answer that angle. जो सबसे पहले देगा वो winner. Okay, listen. What is the name of this angle? Angle of deviation. क्या बात है, क्या बात है. 8th E. Very good. और किसी से जवाब बोला है. Angle of deviation. 8th G also correct. पर थोड़ा सा लेट हो गया बेटे, थोड़ा सा लेट हो गया. मेरे को 8th E को ही आंसर देना पड़ेगा, मार्क्स देना पड़ेगा. This is represented by delta symbol and it is known as angle of deviation. भाई मैं तो सोचता था 8th E आसानी से जीत जाएगा, but now I notice कि B section और G section पूरी टक्कर दे रहे. What about other sections? So everybody please note down. अब मैं इसमें से कुछ आपको लॉज बता दूं जो आपको याद रखने हैं बेटे. एक लॉ मैं लिख देता हूं, चलो आप बताओ. फर्स्ट लॉ मैं लिख देता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकंड लॉ भी मैं लिख देता हूं. कौन सा? इंसिडेंट रे Normal and reflected ray lies on the same point. इन दी ऑल लाई इन द सेम प्लेन. दो तो मैंने बता दी. बाकी दो लॉ आप बताओ, जल्दी बताओ. Angle of glance is half of angle of deviation. वेरी गुड, वेरी गुड. ये कौन सा सेक्शन बताया इतना बढ़िया? section. सेक्शन वंस अगेन. इतना बढ़िया पॉइंट मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था. ये तो शी सेड एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ऑफ ग्लांस. बहुत अच्छे. एक और बच गया बेटे. एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ ग्लांस इज ऑलवेज इक्वल टू 90. नोट कर लो ऑल दी फोर लॉज. प्लीज नोट डाउन एज क्विकली एज पॉसिबल. बेटे नोट करना जरूरी है. अगर आप फिर ऐसे सोचोगे ना याद रह जाएंगे तो ये चीटिंग हो जाएगी. एक बच्चा मेरे को कहता है दूसरे स्कूल का, सर हम तो याद रख लेते हैं, आप आगे कराओ. मैंने कहा उससे, बेटे ये बताना जो ये संडे निकल के गया उससे पीछे वाले संडे में तुमने घर में कौन से कपड़े डाले हुए थे. ऐसे सोचने लगा. भाई जब आपको 2 हफ्ते पहले की चीज नहीं याद रहती तो ये क्या याद रहेगा एग्जाम तक. मस्ट नोट डाउन एवरीथिंग. ओके, वेरी गुड. लेट्स प्रोसीड फर्दर. मैं आगे जाने लगा हूं. समझदार बच्चे ने चारों बॉक्सेस को लिख लिया. फिगर चाहे ना भी बनाओ लेकिन ये 4 बॉक्स लिखने जरूरी है. ओके. एक बात और याद रखनी है आपने. जो एंगल टीचर ब्लू कलर से मेंशन कर रहे हैं, ब्लू कलर से या कोई और कलर लेते हैं, ब्लू दिखेगा नहीं. जो एंगल टीचर
येलो स्प्रिंग से मेंशन कर रहे हैं, येलो स्प्रिंग। अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो थीटा विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ ग्लास, ये भी नोट कर लो। लेकिन ये अपने कोई ला नहीं है, ये ऐसे ही इंफॉर्मेशन। थीटा विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ ग्लास। जब आपको ये डायग्राम पूरे से समझ आ जाएगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे आसानी से। ओके, लेट्स मूव फर्दर। आगे जाने लगे हैं बेटे, ध्यान से सुनो। मान लीजिए ये एक मिरर है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों के लिए। देखते हैं कौन बच्चा बता पाए। और यहां पर एक चाइल्ड मिरर की तरफ देख रहा है। समवन इज लुकिंग इनटू द मिरर, लेकिन क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि उसके घर की दीवार में यहां पर एक क्लॉक लगा हुआ है, वॉल क्लॉक, एक्चुअल वॉल क्लॉक। ओके, और वो इस क्लॉक के इमेज को देख रहा है। दिस इज व्हाट इमेज ऑफ द क्लॉक, इमेज ऑफ क्लॉक। एकदम से जवाब दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि 8th बी और 8th जी और 8th ई को छोड़कर कोई और सेक्शन, ए सेक्शन से कोई आंसर नहीं आया यार, एफ से भी नहीं आया, मेरे को अच्छा नहीं लगा। शाबाश। माय क्वेश्चन इज, अगर इसमें मैं आपको टाइम बता दूं तो आपने उसमें टाइम बताना है। अगर एक्चुअल वॉल क्लॉक में, इन केस आई टेल यू द टाइम, यू हैव टू टेल द टाइम व्हाट इज टाइम विजिबल टू दिस। लेकिन एक बात याद रहे, इन सब क्लॉक में डॉट लगे हुए हैं। 12 का डॉट लगा हुआ है, 1 का डॉट लगा है, 2 का, 3 डॉट लगे हुए हैं। और आपको पता आर हैंड भी होती है और दूसरी भी होती है। ठीक है, अब यहां पर टीचर कह रहे हैं, यहां पर टाइम है 6 PM। व्हाट विल बी द टाइम इन द इमेज क्लॉक? So 6. 12 p.m. 6 PM बेटे। बी सेक्शन ले गया भाई, बी सेक्शन। अब थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन। अगर इधर 5 PM हो तो उधर कितना? 7. maybe 7 p.m. वंस अगेन बी सेक्शन। अब सबसे मुश्किल लास्ट क्वेश्चन इसको। अगर इस जगह पर 4:35 हो तो उधर कितना? Say 8:20. सॉरी, करेक्ट आंसर 8:25. 11:35. अरे इधर पैटर्न लग रहा था ये अभी, फिर से बोलो। 11:35. 11:35। Sir, Say 8:20. 8:25. Say 8:25. 8:25, सॉरी। 8:35. 7:25. यस यस, जी सेक्शन में एक बच्चा बोल रहा है The 7:25। D. Delhi D है. डी में क्या नाम है बेटे आपका? क्या नाम है? जगवीर. पूरे स्कूल में एक ही बच्चा आंसर सही दे सका, जगबीर। क्या बात है। द आंसर वेयर विल बी 7:25। हमेशा याद रखना बेटे, रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट के बाद पता किया कि जो टाइम एक्चुअल क्लॉक में होगा और जो टाइम इमेज क्लॉक में होगा, उन दोनों का टोटल हमेशा 12 होगा। इसका मतलब टीचर, अगर इधर 6 बजाता है तो उधर भी 6 बजेंगे। 6 + 6 12। अगर इधर टीचर 5 करता है तो उधर 7 होंगे। 5 + 7 12। और अगर टीचर इधर 4:25 करता है तो उधर 4:35 तो उधर 7:25 होंगे। क्योंकि देखो ये 4 आर और 7 आर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 आर ये हो गए। 35 मिनट एंड 25 मिनट दोनों को ऐड करेंगे तो 60 मिनट, 60 मिनट यानी 1 आवर। तो 1 आवर ये, 11 आवर ये, और 11 + 1 को ऐड करेंगे तो 12 आवर। सभी बच्चों ने ये नोट कर लिया होगा। टाइम इन द एक्चुअल क्लॉक प्लस टाइम इन द इमेज क्लॉक इज इक्वल टू 12। ठीक है, इतना जानने के बाद भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अब भी जो जवाब दे गया ना, जो अब भी जवाब दे गया, वो बड़ा अच्छा बच्चा है।
शाबाश। अगर मेरे एक्चुअल क्लॉक में टाइम हो 2:20, व्हाट इज द टाइम इन इमेज क्लॉक? So 10, 4:10. 10:40, 9:40. 10:40, ओके, आप कह रहे हो सर 9:40. एक बच्चे 10:40. 9:40. 10:40. 9:40 करेक्ट। अच्छा, Nine- अब मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, ये सारा जानने के बाद भी आप गलत कर दो। देखते हैं कौन बच्चा बचता है ट्रैप से। अगर मैं इसमें टाइम बता दूं, आपने इसमें बताना है, और एक्चुअल क्लॉक में टीचर टाइम बता रहे हैं, वो टाइम है 12 बज गए। 12 बज गए। अब बताओ 12. 12 बज 12 बज गए तो उधर कितना आएगा इमेज क्लॉक में? 12. 12 तो फिर ये तो गड़बड़ हो गया, remains same. Same. फिर ये फार्मूला गलत लिखा क्या टीचर ने? बस यही एक टाइम है, सुनो सुनो, 12 बिल्कुल सही है। 12 a.m. यही एक टाइम है, यही एक टाइम है जो इस फार्मूले का एक्सेप्शनल केस है, इसमें फिट नहीं बैठ। ओके, नोट कर लो बेटे, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ऑन एनी टाइम एक्सेप्ट ये वाला टाइम। नोट कर लो, चाहे 12 PM हो, चाहे 12 AM हो। इस एक्चुअल में तो 12 नून होता है या आफ्टरनून या मिडनाइट होता है। इसको टाइम को छोड़ के बाकी सारों के आंसर इस फार्मूले से आ जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। भाई कंपटीशन आपका हार्ड है, इसलिए ना मैं जरा बना ही लूं। पहले तो मैं सोचता था शायद ई सेक्शन जीत जाएगा, लेकिन मैंने क्या देखा कि बच्चे आसानी से ई सेक्शन को जीतने नहीं दे रहे। तो कौन कौन से सेक्शन है? ए बोला यार, बी, सी, डी, ई, एफ भी है, जी भी। तो जो सेक्शन आंसर देगा उसके कॉलम में मैं डॉट लगाऊंगा, और 1 डॉट का मतलब है 10 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, योर अटेंशन। अब बेटे हम डबल मिरर की बात करते हैं, डबल मिरर। ओके, योर अटेंशन, both mirrors are inclined to each other, mirror 1, mirror 2, such that their shining faces are each other, and the angle between them, theta, is known as angle of inclination. Theta is what called? Angle of inclination. Incline वर्ड से लिया गया, टेढ़ा कर। देखो बेटे, इन दोनों मिरर्स के बीच में एक ये भी एंगल है, ये भी एक एंगल है। ओके, इसको फाई बोल दो, पर आपने वो एंगल लेना होता है जो शाइनिंग सरफेसेस के बीच में। ओके, अब आप मेरे को बताओ कि अगर हम यहां पर किसी लड़के को खड़ा कर दे, बॉय को, तो क्या उसके एक इमेज बनेगा या एक से ज्यादा बनेगा? एक से ज्यादा. एक से ज्यादा. उसका इमेज इस मिरर में, उसका इरर, तो क्या इसके 2 इमेज बनेंगे? Yes. Multiple images. दो से भी ज्यादा बने, इसका इमेज इधर, इसका इमेज इधर, उस इमेज का भी इमेज इधर, और इस इमेज का भी इमेज उधर, एंड सो ऑन। तो मल्टीपल इमेजेस मिलेंगे, मल्टीपल इमेजेस। बहुत अच्छे। लेकिन इस अगर वो मल्टीपल इमेजेस हैं तो उनकी 2 कैटेगरीज हो सकती। एक कैटेगरी हो सकती है कंप्लीट इमेज, कंप्लीट इमेज। अब सभी बच्चे ये देखो, मान लीजिए मेरे पास ये 2 मिरर है, ठीक है, 2 मिरर है, मैंने इनको इंक्लाइंड कर दिया, और ये मैं खुद हूं, सपोज मैंने इसको यहां रखा, मल्टीपल इमेजेस दिखेंगे, ठीक है। तो कोई कोई इमेज ऐसा होगा जिसमें बॉडी कटी हुई होगी, आपने वो कटे हुए इमेज को काउंट नहीं करना, जो पूरी पूरी बॉडी का इमेज दिखाए वही काउंट करना। इसका मतलब कंप्लीट इमेजेस को मैंने n कह दिया,
और जो कट इमेज है, थोड़ा सा भी पोर्शन कट गया उसको आपने काउंट नहीं करना। काउंट इमेजेस को सी कह देते, सी हमने कंसिडर नहीं करना है इस क्लास में, एन पे हम जोर डालेंगे। अब टीचर आप अपने बच्चों को बताना चाहता है कि ये नंबर ऑफ कंप्लीट इमेजेस का एक फार्मूला होता है जिसमें इस पर्टिकुलर शाबाश, ये फार्मूला आपने मेरे को बता दिया, बहुत अच्छे। 360 डिवाइडेड बाय थीटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन ये मेरे क्वेश्चंस में नहीं था। क्वेश्चन में जो चीज है मेरे क्वेश्चन में, अब मैं पूछने लगा, ध्यान से सुनना बेटे। अब अगर किसी क्लास में किसी भी बच्चे ने बता दिया स्कूल में, मैं लिख के देता हूँ वो बच्चा स्कूल में ब्राइटेस्ट है, ब्राइटेस्ट, सारे स्कूल में बेस्ट बच्चा। ले मैं क्वेश्चन पूछने लगा, ठीक है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? ये तो आप कर ही लोगे, कोई भी एंगल 30 डिग्री 40 डिग्री जो मर्जी रखते रहो, उसके मुताबिक आ जाए। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या, योर अटेंशन, ध्यान से सुना। मेरे पास था ये एक मिरर M1, मेरे पास है ये दूसरा मिरर M2, इधर से पॉलिश, इधर से पॉलिश, शाइनिंग फेसेस ईच अदर, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑलरेडी गिवन थीटा। अब टीचर क्या कह रहे हैं, थीटा आपको गिवन है, आप कुछ भी एग्जांपल ले लो मन में, 30 डिग्री 60 डिग्री वट एवर। अब मेरा क्वेश्चन, मान लीजिए एक बच्चा यहां पर खड़ा हुआ है, उसके हाथ में टॉर्च है या लेजर बीम है। आपने देखा होगा बेटे ऐसा लेजर बीम, मार्केट में आसानी से मिल जाता है ऐसा लेजर, राइट। देखिए इधर पड़ता है बोर्ड पे, ये देखो ये लेजर बीम डॉट आपको घूमता हुआ दिखाई देगा, देखो। चलो एनीहाउ, ये बच्चा लेजर बीम से यहाँ पर मिरर नंबर 1 के ऊपर लाइट थ्रो करता है ऐसे, ध्यान से सुना। अगर ये मिरर ना होता M1, तो ये इंसिडेंट लाइट इधर चलेगी होती, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। बट एवरीबॉडी नोज इट विल नॉट हैपन नाउ। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करते हुए ये वाली लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर को चले जाएगी, ठीक है, ओके। और वहां पर जब ये जाएगी, वहां पर भी तो रिफ्लेक्शन होगी, तो वहां से ये लाइट, Reflected to the boy again. ओके, और आपके बॉय के पास आ जाएगी। वहां से ये लाइट टकरा के इधर चलेगी, ठीक है, मंजूर है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना। असली में लाइट किधर को जा रही थी, डॉटेड येलो पाथ, फाइनली किधर को चलेगी, ये वाला चलेगा इधर को। तो इन दोनों मिरर्स ने मिलके लाइट को इस रास्ते से उस रास्ते पे मोड़ दिया। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्रिएटेड बाय डबल इमेज। अगर मैं आपको डेल्टा दे दूं, थीटा दे दूं, तो डेल्टा डैश कितना होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, इसको लेते हुए फार्मूला बना के देखो। इफ थीटा इज गिवन, डेल्टा डैश इज आस्क्ड। जो बच्चा कर देगा बेस्ट है कुछ स्कूल में, गारंटी है इस बार। थीटा का डबल हो जाएगा। कितना? थीटा का डबल हो जाएगा। वो तो सिंगल मिरर में था, वो सिंगल मिरर में था जो कराया था, इसमें थीटा का हाफ। The half. थीटा का हाफ, ना तुक्का लगाते हैं ऐसे तो आप। शाबाश, इस पे कॉपी पेन, 4 हो जाएगा, मैं ठीक ऐसे निकलेगा, कॉपी पेन से निकलेगा ये क्वेश्चन। जल्दबाजी मत करो, जो बच्चा कर देगा वो स्कूल में से बेस्ट है, पूरे स्कूल में से। शाबाश, पेन कॉपी से करो। लेट मी सी, बी सेक्शन में एक भी बच्चा, नोबडी इज रेजिंग हैंड। का 4 हो जाएगा। कितना? 4 4 टाइम्स। 8th जी ने गलत आंसर दिया और कोई बता भी नहीं रहा। 8th F में एनीबॉडी? 5 तुक्का कोई 5 टाइम्स कह रहा, 5 टाइम्स भी गलत। 8th A में भी कोई नहीं दे रहा, 8th F में भी। So 3. 8th B में 3 टाइम्स कही जा रहा है कोई, नो सॉरी। 8th D में भी नहीं दे रहा, और इस बार तो 8th E भी नहीं दे रहा।
सर जो मिरर 2 के पास और मिरर 1 के पास एंगल बनेगा वो दोनों इक्वल हो 8 मेरे को तो ये बताओ, अगर थीटा 30 डिग्री हो तो डेल्टा डैश कितना निकलेगा और क्यों? बस। ये कौन सा स्कूल है? एमआरसी। एमआरसी है ना? 8 वो दूसरे स्कूल के बच्चे ने आंसर दे दिया था ना, उसने दे दिया 8 कितना? 11 ना बेटा 11 टाइम्स ऐसा कुछ नहीं। चलो चलो नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब मैं इसको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। लेकिन याद रखना, एक दूसरे स्कूल ने इसका जवाब दे दिया। नहीं बस अब शांत हो जाओ, अब शांत हो जाओ। सारे आंसर गलत हैं, 0 0। कुछ बच्चे तो मजाक ही करने लगे, 0 कहने लगे। ध्यान से सुनो, शाबाश। नंबर 1 बेटे ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करूं, ध्यान से सुनना बेटे, यहाँ पर तो आपको मानना पड़ेगा सर, अगर आप यहाँ नॉर्मल ड्रा करते हो ना, तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों को बराबर लिखते हुए आप दोनों को सेम वैल्यू अल्फा भी लिख सकते हो। मैंने कहा ठीक है बेटे, इसको भी अल्फा लिख देते हैं, इसको भी अल्फा लिख देते हैं। ओके, ध्यान से सुनते जाना। अब मैं किसी बच्चे से पूछूं, बेटे अल्फा के साथ वाला एंगल कितना होगा, जिसको मैं ग्रीन कलर से मेंशन कर रहा हूं। सभी बच्चे कहें सर ये नॉर्मल ड्रा करा ना व्हाइट वाला आपने, तो नॉर्मल तो 90 डिग्री बनाता है, 90 में से अल्फा माइनस कर दो तो आपका ये एंगल बनेगा 90 माइनस अल्फा। मैंने कहा ठीक है। अब इसी तरह से हम चलते हैं उस तरफ। उस तरफ गए तो टीचर ने वहां पर भी एक नॉर्मल ड्रा कर, और यहां पर भी एक तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और एक तरफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर डैश, दोनों को मैं बीटा से लिख देता, मतलब ये एंगल भी बीटा और ये एंगल भी बीटा। व्हाट इट। अब मैं किसी बच्चे से पूछूं, बेटे अगर ये बीटा एंगल है तो वो एंगल बताओ जिसको मैं व्हाइट कलर से मेंशन कर रहा हूं, डबल लाइन लगा। तो बच्चा कहेगा सर नॉर्मल ड्रा करा था ना आपने ब्राउन कलर का, उसमें से बीटा माइनस कर दो, तो आपका ये हो गया 90 माइनस बीटा। बहुत अच्छे। अब और ध्यान से सुनो, सिर्फ इस ट्रायंगल में आ जाओ, सिर्फ इस ट्रायंगल में जिसमें दो ग्रीन लाइन है। देखो गौर से देखो, ये लाइन, ये ट्रायंगल है हमारे पास, दो ग्रीन लाइन है एक येलो। मैं इस ट्रायंगल को अलग से निकाल के दिखाता हूं इधर अपने बच्चों, ये मैंने अपने बच्चों को निकाल के बताया। तो मैंने बच्चे को बोला बेटा ये बीटा और बीटा को ऐड कर दें, कितना एंगल बना? बच्चा बोलेगा सर ये नेचुरली 2 बीटा बनेगा। मैंने कहा बेटी अल्फा और अल्फा को एंगल को ऐड कर दें तो ये कितना बनेगा? सर ये क्या बात पूछ रहे हो, 2 अल्फा बनेगा। फिर मैंने बोला बेटे ट्रायंगल की इस साइड को भी एक्सटेंड कर दो, इसको भी कर दो, इस साइड को भी एक्सटेंड कर दो, इसको भी एक्सटेंड कर दो। तो ये जो एंगल डेल्टा डैश बनेगा यहाँ पर, क्या ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं हो गया? हाँ जी हो गया सर। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यस या नो? पढ़ा हुआ है? अभी बच्चों ने बोला सर एक्सटीरियर एंगल डेल्टा डैश इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। बहुत अच्छे, आपने ये बता दिया। इसको बॉक्स में रखो, और उसके बाद ध्यान से सुनो, उसके बाद इस ट्रायंगल में आ जाओ जिसमें टीचर ट्रिपल टिक कर रहे हैं। इसके तीनों एंगल देखो, प्लीज सी द 3 एंगल, थीटा 90 माइनस अल्फा 90 माइनस बीटा। मैं इन तीनों एंगलों को ऐड कर रहा हूं, और सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो पहला एंगल थीटा, दूसरा एंगल 90 माइनस अल्फा, तीसरा एंगल 90 minus माइनस बीटा। इन सभी को जब मैं ऐड करा, सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब इस 90 और 90 को ऐड करा तो सभी बच्चे बोलेंगे सर आप 90 और 90 को ऐड करोगे, आपको पता ही है 180 डिग्री प्लस अल्फा, सॉरी माइनस आ जाएगा आपका, माइनस अल्फा और माइनस बीटा, इनका माइनस कॉमन ले लो आप, अल्फा प्लस बीटा ले लो। मैंने कहा ठीक है बेटे, 90 प्लस थीटा भी आ गया,
माइनस अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट में डाल के माइनस कॉमन लिया और थीटा प्लस में लिया इक्वल टू 180। अब एक बच्चा कहता है सर 180 इधर भी है 180 इधर भी है, कट कर दो। आई सेड ठीक है। सो फिर यहां से मैंने उस बच्चे से पूछा बेटे फिर अल्फा और बीटा जो नेगेटिव है उसको उधर ले जाए। हाँ जी ले जाओ सर। फिर आपका थीटा बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का ब्रैकेट उधर जाके प्लस में बन जाएगा, क्योंकि उधर आपका जीरो बचा था कट करने के बाद, अकेला अल्फा प्लस बीटा चल जाएगा, बन गया। मैंने कहा बिल्कुल सही। अब व्हाइट वाले फार्मूले में वापस आ जाओ। सभी बच्चे देखो, यहाँ से टू कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से टू कॉमन लेके अल्फा और बीटा को ब्रैकेट में डालता हूँ, और अल्फा और बीटा की पहले ही मेरे को वैल्यू पता है थीटा, तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा विद प्रूफ, प्रूफ के साथ। अब कोई बच्चा ये मत कहना कि हमने सही आंसर दे दिया था सर, क्योंकि तब आप तुक्का लगा रहे थे। एकदम से एक बच्चे ने डबल बोल दिया था, वो तुक्का था, उसको लॉजिक नहीं पता था। तो आपने याद रखना एंगल ऑफ डेविएशन डबल मिरर के अंदर भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का डबल होता है। नोट कर लो ये प्रूफ सारे बच्चे ये पेपर में आता है बेटे, एग्जाम में आता है ये। इसमें दो चीजें यूज करी टीचर ने, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, मैथ का पॉइंट। दूसरा क्या यूज करा, सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्सक्यूज यस, बीटा क्या होता है? ये तो एंगल का नोटेशन है बेटे। अगर आप इसको जैसे 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 मैंने इसको थीटा का एंगल नोटेशन करा, ऐसे ही आपने बीटा से कर। ये कुछ ग्रीक लेटर्स होते हैं, कौन से, अल्फा बीटा थीटा और डेल्टा, ओके लैम्डा, ये सारे ग्रीक लैंग्वेज के लेटर्स है। आपको Time is over. The time is over. ओके बेटे, तो आज हम एक्टिविटीज को थोड़ा कम कर पाए, कल को करके दिखाऊंगा। जिन बच्चों को आज का लेक्चर अच्छा लगा प्लीज वेव योर हैंड, प्लीज वेव योर हैंड वंस, मैं देखना चाहता हूँ फीडबैक। बहुत अच्छे, कल के लेक्चर को इससे भी मजेदार बनाएंगे और कंपटीशन भी साथ में करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।